Good morning, children. We are back with a new video on Heron's formula and basically applications of Heron's formula. I'm Meghna and we'll be discussing few more important questions other than NCERT. In the previous two videos, first video में हम लोगों ने Heron's formula से triangle का area निकालना सीखा था, and in the second video we learned about applications of Heron's formula, right? Now we'll be doing some miscellaneous questions on this topic. My first question is, we are given a triangle and what we have to do, we have to find the length of perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 13. ये जो 13 meters मेरी side है, 13 meters जो मेरी side है, I have to find the length of perpendicular from its opposite vertex. इसका opposite vertex ही होगा, right? तो this will be say P. P बोल सकते हो मैं इसे. Now I have to find the length of P, right? Now in triangle ABC. इन ट्राइंगल एबीसी देखो क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालना है, वही जो ट्रेपीजियम में किया था हम लोगों ने. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे एंड बाय हीरॉन्स फॉर्मूला, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, राइट? इन ट्राइंगल एबीसी सेमी पेरीमीटर बाय हीरॉन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर विल बी 12 plus 13 plus 5 by 2. This will be 30 by 2, that is 15, right? Now my area will be S minus A, S minus B, S minus C, and this will be S is 15, 15 minus 12, 15 minus 13, 15 minus 5, right? ये तो अभी तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. 15 minus 12 is 3, this is 2 and this is 5. So this will be, इसे फैक्टराइज करते हैं, 3 into 5 is 3 into 2 into 5, right? 3 से pair of 3, we have a pair of 3 as well as a pair of 5 and this 2 will remain inside. So area of triangle ABC is 15 root 2 meters square. अरे I have made a mistake. 15 minus 5 is 10. So sorry, 15 minus 5 is 10. Here 15 minus 5 is 10. So this is 5 into 2, right? So कोई पेयर नहीं बचेगा 5 से, और ये 2 भी बाहर आ गया. And this will be 30 meters square. So my area of triangle ABC will be 30 meters square, right? Make sure you do not make such calculation mistakes. So area of triangle ABC is 30 meters square. And now I have to find the area of this triangle by half into base into height. Also, area of triangle ABC is half into base into height. Our base is AC and my height is P. और मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से क्या आया, बाय 1 30. तो आई सब्स्टिट्यूट 30 एंड आई राइट बाय इक्वेशन 1, राइट? तो नाउ दिस इज 30 हाफ इंटू AC इंटू AC कितना है मेरा, AC इज 13 एंड दिस इज P. सो दिस विल बी 30 इंटू 2 बाय 13, दिस इज P. So my P is 60 by 13 meters. So this is the length of my perpendicular. देखो क्या करना है, अगर हमें किसी भी ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है और हमें उसकी तीनों डायमेंशन दे रखे हैं, वी हैव टू अप्लाई हीरॉन्स फॉर्मूला एज वेल एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हमेशा वो लेना है जिस पर हमें हाइट फाइंड करनी है. सपोज अगर
यहाँ पर ये ट्राइंगल है, 3 परपेंडिकुलर्स पॉसिबल है इसमें, राइट। अगर मुझे ये परपेंडिकुलर फॉर्म करना है तो दिस विल बी माय बेस एंड दिस विल बी हाइट। सी अगर मुझे ये वाला परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दिस विल बी माय बेस एंड दिस विल बी हाइट, और जब भी इक्वेट करेंगे विल गेट द लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर। My next question is very simple, basic question. See, my question is, we are provided with a figure with a triangle what we have to do in this, we have to find the area of shaded part, and this angle is 90 degree. We have to find the area of shaded part. देखो, अगर मैं इस कंप्लीट ट्राइंगल में से, अगर मैं इस पूरे का हीरॉन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड कर लूं, मैं कंप्लीट ट्राइंगल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया इफ आई सब्ट्रैक्ट, आई फाइंड द शेडेड पार्ट। बेसिकली मुझे एक एबीसी का एरिया फाइंड करना है और मुझे इस छोटे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, राइट। अब एबीसी का अगर एरिया फाइंड करना है, दिस इज 15, दिस इज 14, बट ये डायमेंशन वी आर नॉट गिवन, तो मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे फाइंड होगा, इस ट्राइंगल के अंदर दिस एंगल इज 90, सो कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? यस, in triangle, so here find area of shaded rays, right? In triangle APC, by Pythagoras theorem, AC square equals to AP square plus PC square, right? AC is, we have to calculate, AP कितना है 12 square and this is 5 square, this is 144, 25, so this is 169, तो यहाँ से AC is 13 centimeters, यहाँ से we got AC और वो क्या आ गया अपने पास 13 centimeters, right? अभी देखो तीसरा डायमेंशन आ गया, उससे पहले मैं हीरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। नाउ इन ट्राइंगल APC, in triangle APC, area of triangle APC is half into base into height, right? half, base कितना है 5, height is 12, this is 6, so this will be 30 centimeters square. So area of APC, area of triangle APC is 30 centimeters square. छोटे ट्राइंगल का एरिया आया. Now we'll be finding area of this ABC. Now triangle, in triangle ABC, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर. यस, दिस विल बी a plus b plus c by 2, that will be 13 plus 14 plus 15 by 2, 42 by 2, that is 21, right? अभी एरिया फाइंड करते हैं. एरिया इज ओके, यही फाइंड कर लेते हैं. एरिया इज s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. क्या हो जाएगा ये? s is 21, 21 minus 13 minus 14 minus 15, right? So this will be square root of 21, 876. तो इसे सॉल्व करते हैं. ये क्या आ जाएगा अपने पास, 7 into 3, 2 into 2 into 2,
इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइज किया मैंने सभी को। अगर आपसे डायरेक्ट ना हो आप लोग प्राइम फैक्टराइज प्रॉपर कर सकते हैं। तो 7 और इस 7 में से एक 7 बाहर, सो दिस 3, ये भी 3, 2 के 2 पेयर्स हैं। अगेन दिस इज 21 इंटू 4, 21 into 4 will be 84, right? 84 centimeters square. Now area of this triangle is 84 centimeters square. लिख देते हैं. This implies area of triangle ABC. This is 84 centimeters square, right? अब हमें area of shaded region find करना है. Now area of shaded region. Area of shaded region will be area of triangle ABC minus area of triangle APC, right? ABC का एरिया कितना है 84 minus APC का कितना है 30, and this will be 54 centimeter square. So this 54 centimeter square is my answer. आई होप ये क्लियर है. शेडेड का एरिया फाइंड करना है, कंप्लीट का एरिया फाइंड करो, अनशेडेड का फाइंड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो. दैट्स इट. इस ट्राइंगल का एरिया भी आप हीरन्स फॉर्मूला से यस यू कैन फाइंड आउट, राइट? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज my last question is find the percentage increase in the area find the percentage increase in the area if each side gets doubled. राइट? एरिया फाइंड करना है. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना एरिया इंक्रीज नहीं हुआ, कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है. लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड स्मॉल एस बी द सेमी पेरीमीटर. इसे सेमी पेरीमीटर बोल दिया हमने. So can I say this small s is a plus b plus c by 2, right? कह सकती हूँ मैं. Now area will be, इसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर देती हूँ. तो this will be square root of s, s minus a, s minus b, s minus c, right? इतना आ गया. Clear? Now लेट, अब साइड्स डबल हो गई, यानी कि ए है तो 2a, 2a 2b and 2c with the new sides of triangle and s dash, this is s dash be semi perimeter, right? semi perimeter s dash बोल देती हूँ. तो अब यहां से s dash निकालेंगे. This will be 2a plus 2b plus 2c by 2. 2 कॉमन आएगा. a plus b plus c by 2. This is cancelled. तो ये आ गया a plus b plus c. अब मेरा s dash जो है is a plus b plus c. अब a plus b plus c की क्या वैल्यू है? This implies, यहां से बोल सकती हूँ a plus b plus c equals to 2s. Can I say this? Right? This I'm highlighting. ठीक है. तो अब मैं a plus b plus c को क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 2s. तो s dash will be 2s. क्लियर है? अभी न्यू एरिया फाइंड करते हैं. That will be a dash. C यहाँ a है. This is a dash. This will be square root of s dash. S dash minus 2a. S dash माइनस, अब 2a 2b क्यों कर रही हूँ? क्योंकि 2a and 2b आर द साइड्स है. एंड s dash माइनस
2c, राइट. अभी s डैश की वैल्यू पुट करें. s डैश की वैल्यू विल बी 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c. अब देखो सभी से 2 कॉमन ले लूंगी मैं. 2 ये वाला रहा, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, सिमिलरली फ्रॉम हेयर, and this will be s minus a, s minus b, s minus c. ठीक है. अब ये 2 और ये 2 बाहर, and this will be 4. इसका एक 2 और इसका एक 2, 4 आ गया. और s minus a, s minus b ये सब क्या हो गया, a हो गया. तो a डैश की वैल्यू इज 4a. क्लियर हुआ. अभी देखो हमने क्या किया. लेट सबसे पहले इनिशियल जो मेरा ट्राइंगल था, स्मॉल एबीसी उसकी साइड्स, स्मॉल एस विद सेमी पेरीमीटर, तो मैंने यहां से सेमी पेरीमीटर और एरिया लिख दिया, राइट. नाउ 2a, 2b, 2c विद द न्यू साइड्स एंड s डैश भी सेमी पेरीमीटर एंड a डैश विद द न्यू एरिया. ठीक है. तो मैंने s डैश फाइंड किया, a प्लस बी प्लस सी आया, तो यहां से मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2, उधर मल्टीप्लाई 2s, यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, a प्लस बी प्लस सी की रिप्लेसमेंट पे आई हैव रिटन 2s, राइट. फॉर्मूला में s डैश की रिप्लेसमेंट पे हर जगह पर क्या आ जाएगा अपने पास, इट विल बी 2s एंड a डैश इक्वल्स टू 4a. नाउ परसेंटेज इंक्रीज, change in area upon original area into 100, राइट. अब चेंज इन एरिया, पहले एरिया कितना था a, अभी कितना था a डैश, तो a डैश माइनस a, ओरिजिनल वाज a into 100, a डैश इज, a डैश की वैल्यू वी फाउंड आउट 4a minus a upon a into 100, right. So this will be 3a by a into 100, a से a cancel and the percentage increase is 300%. So अगर आपके पास एक ट्राइंगल की डायमेंशंस गिवन है 2 3 4 सपोज, और उसको डबल कर दिया 4 6 8, तो आपका कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, it will get increased by 300%, right. I hope ये questions आप लोगों को समझ आए, and do let me know again अगर इनमें से कुछ भी clear नहीं हुआ, and we'll be discussing next chapter in the next video. Thank you.